आपको शुरू में ही बताया था कि ये 5 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलती है राइट इन द बिगनिंग। आप जो भी बैच के हो, कोई भी बैच अगर उठा लेते हैं हम, जो 5 क्लासेस है रिस्क मैनेजमेंट की जो 5 क्लासेस है ना, यही क्लासेस हैं आपकी। और साइकोलॉजी होगी, आपको रिस्क मैनेज करने की ही साइकोलॉजी है। और है ना, जस्ट अ सेक, लेट मी जस्ट रीड। और क्या साइकोलॉजी होगी बताओ, ट्रेडिंग में क्या साइकोलॉजी और होगी? I recover all my losses. Padmini Singh, for profitable since 3 months. I thought, uh, I know very good about trading, but after joining StockPro, I realized that I know. Oh no, ऐसी बड़ी कैंडल आई थी ना, जब ये बहुत बड़ी कैंडल आई थी, मैंने अच्छा खासा लॉस बुक किया है। तो जस्ट अ सेक, जिस दिन, बट आई रिकवर्ड एवरीथिंग बिकॉज सी इम्पोर्टेंट इज टू कट योर लॉसेस। अगर लॉसेस कट करना नहीं जानते हो ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। मैंने उस दिन लॉस कट किए। आई वाज, ये जिस दिन बड़ी कैंडल बनी थी ना, आई had good open positions. I booked all my losses and I exited. I recovered every single bit in this up move. Okay, let me read the questions. Okay, wait. Don't send more questions. Sometimes your videos are, you say stock is breaking out, but option price is high. How to decide the best option price? I'll tell you. All of it I'm going to tell you. Your word pulsating in echo in my ear so much these days. Please help connect the dots. I will do that. That's what I'm doing right now. I keep losing in stock market trading index. No, please don't do that. ना देखो, मेरे को बहुत, मैंने, see, first when you start trading in the market you have to work on yourself. अगर आपको, सी स्टॉक मार्केट में कोई एक तरीका तो है नहीं कि आप एक ही तरीके से पैसे बना सकते हो, राइट? स्टॉक ऑप्शन में अगर इंडेक्स ऑप्शन में नहीं बन रहा है पैसा, तो स्टॉक ऑप्शन में आ जाओ, है ना? तो डोंट लूज गिरीश, चेंज योर स्टाइल एंड आई एम नाउ डिसाइडेड टू स्टॉप। हाँ, छोड़ दो। it's not cup of every, it's not the everybody's way of working into it. Some of your stocks quit and move. How to practice, हाँ मैं बताती हूँ। Love your videos from, okay, thank you so much. So let's start, है ना? अब शुरू करते हैं। Great to join StockPro. Thanks after learning the language of stock market. Absolutely, right? Stock market was like Spanish, okay? For me, it was all French, Chinese, Japanese, whatever difficult languages you put. But I have done a lot and lot of work. As a beginner now, how much return we must target? I would say target on your learning. Target on your learning. Return अपने आप आ जाएगी. I would say 100, 200, 3000%. जो भी आप करोगे उतनी आ जाएगी. So much clarity after StockPro. ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन अब हम आज शुरू करते हैं कि बॉटम से बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को मेरा सेटअप बताइए। अब क्वेश्चंस मत भेजो, अब मेरे को सुनो, राइट? लेट्स, आर यू बीइंग एबल टू सी माय स्क्रीन? दिस स्क्रीन यू कैन सी। स्टॉक सिलेक्शन क्लासेस बाय पंकज सर आर हेल्पिंग अ लॉट। यस, इट शुड। ओके, सो अब ना कुछ मत भेजो, अब आप सुनो। अगर आपको कोई इश्यू आता है ना, तब लिखना। तो मेरा सेटअप सिंपल है, मैं कभी भी इस सेटअप को चेंज नहीं करती हूँ। आई नेवर चेंज, वेदर इट इज इंडेक्स, वेदर इट इज स्टॉक्स, आई विल नेवर चेंज माय सेटअप, राइट? उसका रीजन ये है कि it's like you've heard about that Chinese proverb that I'm not afraid of people who know 10,000 things. I am afraid of a person who has mastered one thing. Full screen, isn't it full screen? Isn't this full screen? Should I can remove myself, I can switch the camera off. Is it full screen or no? How do I make it full screen? It's full screen now. Okay, okay. I thought चला screen के साथ, मतलब if I'm live with you, it'll make a little difference to understand with expressions. So I never change my setup, right? Because what he said, I feared a person who has mastered single stroke 10,000 times. मेरा situation वही है because I have just mastered a simple what do you say, simple setup
I have practiced it so much that it's in my blood. Like each cell of my can read it, right? Right. So I like this is say how Nifty looks. So aapko what do you have to put? Simple 10 SMA right here. You can see simple moving average 50 and simple moving average 200. Just teen, right? Bruce Lee is saying, है ना? So I don't have a complicated setup. I have a very simple setup. 10 moving average, 50 moving average, and 200 moving kahin pe ye niche hai, right? This is my setup. This is the one I use for everyone, everywhere. Have you seen Reliance the day before? Exactly same. There is no difference. See here, ye moving average is taking support. I have told you in the first class itself कि मैं अपना setup कभी change नहीं करती हूँ. Have a look at it. Moving average is taking a support. बस मैंने क्या किया था? Past barriers mark करे थे, right? 2920 आप देख सकते हो जाके. यहाँ जाके देख सकते हो कहाँ पे दिया है ये. Reliance को सर्च करते हैं. So you will find it very simple. I don't change Reliance, right? 3005 फ्रेश ब्रेकआउट इसके ऊपर दिया हुआ है, तो वो इसलिए दिया होगा. अच्छा ये कल के लिए दिया है ना. एक बार इसको और देखते हैं. रिलायंस बैरियर्स मार्क करे थे, राइट? 2920 आप देख सकते हो जाके. यहाँ जाके देख सकते हो कहाँ पे दिया है ये. रिलायंस को सर्च करते हैं. तो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल. आई डोंट चेंज Reliance, right? 3005 फ्रेश ब्रेकआउट इसके ऊपर दिया हुआ है, तो वो इसलिए दिया होगा. अच्छा ये कल के लिए दिया है ना. एक बार इसको और देखते हैं. यहाँ देखो आप 2961, राइट? दिस इज वेयर वी हैव गिवन. नहीं सॉरी, जिस दिन हमने दिया था वेडनेसडे को दिया था 2925 के ऊपर दिया था, राइट? 2925 के ऊपर दिया था. नो EMAs नहीं है, because see I don't EMAs basically focuses more on the recent price. So आप जो भी सिस्टम लगाना चाहो लगा लो, बट मैंने इसी को मास्टर कर रखा है, which is 10 simple moving average, and I don't change it to EMA because I'm pretty comfortable and I understand this really well. Now इतना आप सबको समझ में आता है. How many of you know this setup कि 10 moving average, 50 moving average, whenever they take support, whenever 10 moving average takes a support on 50 moving average, that's when I would like to take an entry, right? See, I'm not using EMA. आप जो चाहो वो use करो, but I'm using SMA, simple SMA, that to be 10, 50 and 200. तो आप देखो जो भी आपको use करना है, you can use whatever you want, but I use this. Why? Because when I started learning, I learned on this system only, and this is also about this gentleman was in New York Stock Exchange, and he used to trade using 10, 50, 200 SMA. Okay, तो प्लीज अगर आपको करना है ना तो उसको मास्टर कर लो. आपको जो भी EMAs, SMAs, टाइम फ्रेम 1 day, ऑलवेज 1 day, नेवर लेस देन दैट, राइट? टाइम फ्रेम इज ऑलवेज 1 day. अब देखो मैंने एक और स्टॉक दिया था आपको, अदानी पोर्ट्स. Have a look at it. So beautifully taking a support, right? हमने यहाँ पे बाय किया था बिकॉज ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी. सो दिस वाज माय, आई वाज वांटिंग प्राइस टू गो अबव दिस. अदरवाइज अगर कोई बहुत अगर मैं अदानी पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ. द ब्यूटीफुल ट्रेड वाज हियर, यहाँ पे बनता था 1269 पे. ओके 1269 to 12, और इसका रूल है दिस ट्रेड विल गिव यू मिनिमम 10% रिटर्न, एंड दैट टू बी इन अ फ्यू डेज. सो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई सेलेक्ट दी स्टॉक्स. सो पहली बात, मैं पूरा मार्केट, देयर आर अबाउट 200 स्टॉक्स FNO सेगमेंट के, आई स्कैन देम एवरी डे. प्लीज एक्सप्लेन मार्किंग पास्ट बैरियर्स. सो मैं मार्किंग पास्ट बैरियर आपको दिखाती हूँ. जैसे ये है पहला, तो ये कैंडल जो थी ना, आप देखो, I would, before I go on, I would like to explain you कि why this setup works, what is so important about this setup. ठीक है, it is 10 moving average, simple moving average 10, 50, 200. Why this setup works? आप पहले उसको समझो. आपको साइकोलॉजी, यही है साइकोलॉजी. अगर आपको ये समझ में आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. ये जो कैंडल बनी है, राइट, this is a very heavy selling candle. You all agree with me or not? Raise your hand or write yes. This is a very heavy selling candle. You agree?
All of you understand that it's visible, right? The day market fell, this big candle formed. उसके बाद ये 10 SMA है. What does 10 SMA show you? What does 10 SMA show you? It tells you recently क्या हो रहा है. और what does 50 SMA tells you? 50 days से या 50 candles से क्या हो रहा है. आप देखो ये 10 SMA ने नीचे क्रॉस नहीं किया है 50 SMA को. That means recently अभी भी इसमें बाइंग हो रही है. If this point is clear to you, you will have 100% trust on your setup. Tell me what I'm saying, is it okay or not? I'll just remove the drawing and again ask you guys. ये जिस दिन कैंडल गिरी है 10 SMA यहाँ पे है. 10 SMA means recently इसमें लास्ट 10 दिनों से क्या हो रहा है स्टॉक में, बाइंग आ रही है. Has the buyer gone below 50 SMA? मतलब 50 दिन से जो हो रहा है, whatever is happening for the last 50 days, has it validated it? Like 50 days there has been a buying. Has the 10 SMA, the recent, has crossed it? No. So that means recently there is still buying going on. It is possible many times it crosses below. I'll show you examples. इसी में दिखा देती हूँ. इसी I'll show you in this stock itself. See 10 is ये देखो यहाँ पे क्रॉस किया है. There is cross of 10 SMA below 50 SMA. प्राइस गिरा है और ये देखो ना, क्लियर है यहाँ पे. ये गिरा है 10 SMA के नीचे गया और ये क्रॉस भी हो गया, यहीं पे क्रॉस हो गया, राइट? सी वही इतिश्री, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. अभी कॉन्सेंट्रेट, ये मत पूछो कि आप स्टॉक कैसे निकालते, मैं वही बता रही हूँ आपको. अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो. डोंट आस्क यूजलेस क्वेश्चंस, आस्क रिलेटेड टू व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना? बिकॉज टाइम वेस्ट होगा आपका भी और औरों का भी. हाँ, कलर चेंज कर लो, एक ग्रीन है, ब्लू है, कुछ और कर लो. मैं बस, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. इसको मैं वैसे ग्रीन रखती हूँ और इसको रेड रखती हूँ, है ना? So 10 SMA should be greater. We are no one to decide. You just follow the screen. आपको मैं जो चीज समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि जब whenever there is a correction, right, this big correction had come, almost like कितने पॉइंट्स का करेक्शन है, आप यहाँ से देखो कितने पॉइंट्स का करेक्शन है. यहाँ से 103 से it has fallen to 1197, 200, 100 पॉइंट का करेक्शन है, 10% का करेक्शन है. Has it fallen? Has the 10 SMA gone below 50 SMA? See, right? Yes or no? आप और कुछ मत पूछो, बस ये बताओ कि 10 SMA गई है कि नीचे की नहीं है. अगर इतना गिरावट आई है तो गिरना चाहिए ना, 10 SMA को नीचे जाना चाहिए ना. It should cross. 10 SMA shows you last 10 days में क्या हुआ है. 50 SMA shows you last 50 days में क्या हुआ है. Now what has happened? उसके बाद next day there is buying. Abhi, I'm still not convinced because there is a huge difference between these two moving averages. Then it'll go up, then it'll go down, then it'll go up, then it'll go down. ऐसे करते करते जिस दिन ये कैंडल बन जाती है 50 SMA के ऊपर प्राइस क्लोज होता है, this is a hugely great sign for you to know that market will be going up. ये जो जगह है, this candle was a very very good candle. हमको नेक्स्ट डे भी इसमें एंट्री लेनी थी, बट व्हाट हैपेंस, मेरे को बहुत ज्यादा अदानी स्टॉक्स पे ट्रस्ट नहीं है तो आई हैव नॉट गिवन इट. बट यूट्यूब वीडियो में मैंने दे दिया था ये सेटअप में कितने एसएल लग सकते हैं. सी, ऐसा नहीं पता है मुझे कितने लग सकते हैं, बट जितने भी आप मेरे स्टॉक्स ट्विटर पे देखते हो, जितने भी आप स्टॉक्स ज्यादातर देखते हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है. इसकी खूबसूरत बात यह है कि इस तरह के सेटअप में एसएल बहुत छोटा है. कितने पॉइंट्स का एसएल है? 13 पॉइंट्स का. और टारगेट कितना मिल रहा है आपको? ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट से भी ज्यादा का आपको टारगेट मिल रहा है. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. एसएल लग सकते हैं कहीं भी. When stocks breaks 10 SMA, it triggers entry. हाँ, अगर स्टॉक 10 SMA के ऊपर जाता है और मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रही है, you can buy it. Placing of stop loss, entry candle low of, हाँ exactly, entry candle के low पे आप, और इसका ना यही very very important point is that the SL is very small and you know that there is some institutional activity that's happening. इससे हम swing trade स्टॉक की मंथली कॉल पुट सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगेन देयर इज नथिंग व्हिच इज 100% इन द मार्केट. यू हैव टू कीप अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस. कभी कभी ब्रेक हो जाता है. अभी किसी में हुआ था, रिसेंटली हुआ था ये, और आई थिंक LNT में हुआ था या किसी में हुआ था,
क्योंकि क्या होता है कभी अगर न्यूज आ जाती है ना, देन नोबडी कैन सेव यू, नोबडी कैन सेव यू, यू हैव, नहीं इसमें नहीं, किसी में हुआ था, आई थिंक LTTS में हुआ था कि किस में हुआ था, किसी में हुआ था. So you can't do anything when there is news coming in, right? जब न्यूज आ जाती है ना, आप नहीं, मेरे को याद नहीं है किस TCS में हुआ था. तो ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि न्यूज आ गई ना, आप याद करो न्यूज आ गई थी. देखो यहाँ पे हम ले रहे थे, बट आई डोंट नो, ये भी नहीं था, बहुत बढ़िया कोई ट्रेड था बट उसमें ब्रेक हो गया था. देखो यहाँ देखो, ये देखो, हैव अ लुक एट इट. दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेड. यू हैव टू सी हाउ स्मूथ इट इज, हाउ स्मूथ इट इज. देखो यहाँ मैंने आपको बोला ना, इसमें आपको मिनिमम 10% टारगेट करना है. आप किस कैंडल पे एंट्री लोगे? मैं यहाँ पे एंट्री लूंगी, राइट? ये जो बड़ी सी कैंडल है, इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगी. मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये होगा, राइट? ये मेरा स्टॉप लॉस होगा. तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया? 30, 40, 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया. और मेरा टारगेट क्या होगा? जो भी टारगेट है, एटलीस्ट 1:5 का आपको जरूर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए. सो 3416 से लेके 3600 तक आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स मिल गए. 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 200 पॉइंट, 1:5 का आपको मिला है, राइट? तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी. एंड many people I have seen, मेरे ही स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि no one talks about it, no one publicly talks about it, but I want people to know. See here, such a beautiful trade, such a beautiful trade. See here, this is an extremely good trade. Where will you enter? You can enter here itself. यहीं पे enter कर सकते हो आप, इस जगह पे. And see the, आपका स्टॉप लॉस कितना है? बहुत छोटा सा है. और टारगेट क्या है आपका? टारगेट जो भी आप लेना चाहो, 1:5 का तो आप लेके चल ही सकते हो. यहां तक तो जा ही सकते हैं, यहां तक तो हम जा ही सकते हैं. ओके, सो वंस अगेन आई विल रिपीट इट. लेट मी डू सम स्टफ विद यू पीपल. एक पहले ना मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, 10 SMA स्टाइल. इसमें इसको डार्क ग्रीन करके थोड़ा सा मोटा कर देते हैं. ठीक है, डन. उसके बाद 50 SMA को भी हम थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं, इसको ब्लू की जगह रेड कर देते हैं और थोड़ा सा थिक कर देते हैं, राइट? सो डन. ये हमारा सेटअप है. अब आपको क्लियरली दिखेगा, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? दिस इज योर सेटअप. अब इस सिंपल सी चीज है कि आपको जब भी 10 SMA, और ये भी सपोर्ट ही है, डोंट कंसीडर इट ये नीचे ब्रेक कर गया, कंसीडर इट एज अ सपोर्ट ओनली, राइट? आपको ये दिख जाएगा जैसे ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, तो आपको दिख जाएगा. आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे एंट्री ले सकते हो जैसे ये ऊपर जाता है इस जगह पे, और आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा. Sometimes 10 SMA crossing below, ma'am, what about that? See, ये 10 SMA cross below, but how it's taking a turn, right? That's important. How it's taking a turn, that's important. How many of you understood the setup? How many of you understood the psychology behind why it works? कितने लोगों को समझ में आ गया? What about charting? See, I have not made a scanner because I like to see with my own eyes. Every single day I do scan of about 200 stocks. Right? Anybody? Okay, many people got it, but how many people have not got it? वो लिखो. जिनको समझ में आ गया उनका ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग लिखो. Wait, somebody didn't get it. As I had bad network. Ruchi. Okay. निफ्टी एग्जिट प्लीज. नहीं, निफ्टी कहाँ बात आ गई? मैं निफ्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ. आप निफ्टी की बात कहाँ से कर रहे हो? नहीं, देखो जिस टॉपिक पे बात हो रही है ना, उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो आई विल बी वेरी अपसेट. आई विल नॉट बी आंसरिंग एंड आई विल बी वेरी अपसेट कि आप लोग पे ही नहीं कर रहे हो टेंशन. आपको निफ्टी और इधर उधर की बातें करनी है, प्लीज ऐसे मत करो. If you can't concentrate right now, then you can, like, this is not the way. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करो, है ना? ओके, आई रिपीट अगेन. तो मेरा सेटअप बहुत सिंपल है. 10 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA. बस 3 लाइंस होती हैं.
right? I wait for a situation when 10 SMA takes support on 50 SMA. This will be an excellent trade for me, right? ऐसा नहीं है कि 100% आपको रिजल्ट देगा, कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, हो जाता है, बहुत रेयर के सिचुएशन में होता है जब if there is a news then your stop loss will hit. So this is a very very beautiful trade for me. I will wait for the past barriers to be broken. यहाँ पे मेरे past barriers हैं, इसके ब्रेक, इनके ब्रेक होने के बाद I will take an entry. My stop loss is going to be right here, ये जगह पे मेरा stop loss होगा इस कैंडल का लो, और उसके बाद you can see how beautiful the breakout has come, right? So what I'm saying that you have to be watching. 2-3 दिन आपको वॉच करना पड़ेगा कि ये वाकई सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है. There is a possibility that it may break down, but you have to watch it when the moving average takes support clearly. This is a beautiful trade. There is no doubt about it. इसमें आप 100%, अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है, एटलीस्ट 5 लाख कैपिटल इसमें डिप्लॉय कर सकते हो, और जब ये ब्रेकआउट आ जाए तो अनदर 5 लाख. ये 100% ऑनेस्ट ट्रेड है. और I have given similar trades a lot of time. I'll show you. I have given Dr. Reddy का trade. इसने बहुत बढ़िया शानदार ब्रेकआउट दिया था एक बार. It's about few years back. देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से 4400 से सीधा 4942. इसमें आप कितना पैसा बना सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो. I have given इसका एक और दिया था मैंने कहीं पे, डॉक्टर रेड्डी का, बहुत आई थिंक वही ट्रेड ये था. This was the trade that I have given. कोरोना का समय था, और ये देखो ये कितनी बढ़िया accumulation है. Do you all agree? Is this accumulation or not? This is a very very beautiful accumulation, right? This is a very beautiful accumulation, right? And have a look at it. क्या within 3 days 1 2 3 candles में आपको इतना पैसा मिला है कि आप अगर ऑप्शंस आपने लिए तो आप you can just multiply your wealth like anything, right? Have you seen it? ये ट्रेड मैंने दिया हुआ है, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हो. मेरे पता नहीं क्यों डेस्कटॉप पे ट्विटर नहीं लॉग इन हो रहा है, बट यू कैन गो एंड सी ऑन द ट्विटर दिस ट्रेड आई हैव गिवन ऑफ डॉक्टर रेड्डी. अभी पीछे एम्फेसिस दिया था. हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दैट? इट वाज द सेम ट्रेड. बिकॉज मैं स्टाइल नहीं चेंज करती हूँ, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं चेंज करती हूँ. अब बॉटम से बाइंग आ रही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कहाँ पे मैं बोलती हूँ, देखो ये देखो, सी दिस वाज द ट्रेड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. थोड़ा इस समय टर्बुलेंसी ज्यादा थी ना, तो इसने 1-2 बार स्टॉप लॉसेस हिट किए, बट ये जैसे बैरियर क्रॉस हुआ ना 2659, सीधा ये आपको 200 पॉइंट्स का इसने मूव दिया है, राइट? आई होप यू ऑल गेट इट. सो यूजुअली माय ट्रेड्स आर 10 SMA टेकिंग सपोर्ट ऑन 50 SMA. अभी देखो मैं एक रीसेंट ट्रेड आपको बताती हूँ. कैश में कौन सा ट्रेड दिया मैंने, I don't know, I don't recollect. अभी मेरे को कोई ध्यान नहीं आ रहा है. Can you make box on accumulation? So ये accumulation zone है. Here is the accumulation zone. ये accumulation है, because ये up down, इसको buyers नीचे नहीं जाने दे रहे, sellers ऊपर नहीं जाने दे रहे. So this is an accumulation zone. E-Mudra was a different trade. E-Mudra was, I'll tell you क्या किया था मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ. E-Mudra ये कंसोलिडेट हुआ था, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन हुआ था. व्हाट आई रियली से इज कि ये अगर आप कोई और फ्रेम देखोगे ना तो शायद आपको मूविंग एवरेजेस सपोर्ट लिखी हुई दिख जाए, बट उस समय यहाँ देखो, ये देखो आप इसका ई मुद्रा का, ये अभी हम मूविंग एवरेजेस की बात करें ना, यहाँ देखो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड ट्रेड. सी हियर व्हाट अ स्मॉल स्टॉप लॉस, just tiny stop loss, and look at the breakout. आपका स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 456 और ये 33. सो 22-23 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और मूवमेंट कितना मिला आपको? पूरा 100 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट लाइक 1:5 का रेशियो आराम से मिलता है. DSSL इज डिफरेंट, राइट? DSSL जो है वॉल्यूम्स के साथ अपने हाई को ब्रेक कर रहा था. DSSL वॉल्यूम्स के साथ अपने हाई को ब्रेक कर रहा था. ये देखो, और ये देखो, दिस इज ऑल्सो दैट मूविंग एवरेज ट्रेड. आप देख रहे हो, दिस इज मूविंग एवरेज ट्रेड. बट क्या था कि इसको जब मैंने पिक किया, इसने अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस कर लिया था. यहाँ पे देखो, ये हमारी एक्चुअली एंट्री बनती थी 838 पे, बट आई मिस्ड इट. सो कहाँ पे हमने ली एंट्री? जहां पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो रहे थे, तो इट गिव अ गुड ब्रेकआउट.
explain the straight line on chart. Straight line is basically ये pass barrier है ना, this pass barrier is getting broken. Straight line is simply pass barrier. तो ये बैरियर था जहां पे बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, तो इसके ऊपर ही हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कल जब दिया था तो इस जगह पे, बिकॉज हियर देयर वाज अ रेजिस्टेंस, सो आई गेव इट अ बाय अबव दिस। हाउ डू आई, हाँ, सो अब आते हैं क्वेश्चन। पहले मेरे को ये बताओ, आई विल टेल यू हाउ आई फाइंड आउट दीज स्टॉक्स। ये एक क्वेश्चन हो गया। आपको पहले सेटअप समझ में आ गया? हैव यू ऑल अंडरस्टूड सेटअप? अगर सेटअप समझ में आ गया तो मैं आगे बताती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि मैं लाइव मार्केट में कैसे इसको सिलेक्ट करती हूँ। पास बैरियर मींस जहां से इसने पास में रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे जहां पे आप विक देख रहे हो ना, यू सी दिस विक, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, ये सारे सेलर्स का जोन है, बट इस कैंडल से सेलर्स एक्टिव हो गए थे, तो ये बैरियर जो है क्रॉस होना जरूरी है। इफ यू हैव ऑल अंडरस्टूड, अच्छा आई जस्ट वुड लाइक टू हियर कि किसी हाँ, बॉटम से बाइंग कहां से देखते हैं, कहां पे देखते हैं बॉटम से बाइंग? जैसे ये आपको मूविंग एवरेज का सेटअप है, राइट? मेरा सब कुछ इसी पे होता है। ये बॉटम से बाइंग आ रही है, यहाँ पे बॉटम से बाइंग आती है। जैसे मैंने अभी एक ट्रेड दिया था लाल पैथ का, लाल पैथ, डॉक्टर लाल पैथ, दिस वाज अ ट्रेड फ्रॉम द बॉटम, सो सेटअप रिमेन सेम। ये बॉटम से बाइंग आ रही थी, इसने डबल बॉटम लगाया था। ये देखो, ये एक तो ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस रिजेक्शन, गिरता गिरता स्टॉक। ये चीज मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बोली हुई है। को सपोर्ट लाइन के बाद एंट्री, हाँ जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस के बाद, नॉट सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बाद ये स्टॉक देखो अब गिरता हुआ आ रहा है, राइट? दिस स्टॉक इज फॉलिंग डाउन, राइट? यू सी दिस अ डे अ दोजी फॉर्म्स। दोजी क्या इंडिकेट करती है बताओ मुझे, व्हाट डज दोजी इंडिकेट? व्हाट डज दोजी इंडिकेट? अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं जाके, ऑन दिस पर्टिकुलर डे, on this particular day, गिरता गिरता स्टॉक हैज स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन। मैंने इसको बहुत बार यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया है दैट सपोज न्यूट्रल नहीं, रिवर्सल, रिवर्सल, दोजी एट द बॉटम मींस रिवर्सल। ये स्टॉक गिर रहा है, आप सोचो कि कोई ट्रक है, राइट? देर आर 10 people pushing a stone, right? 10 people pushing a stone, ऐसे करके उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और टग ऑफ वॉर सोच लो, टग ऑफ वॉर चल रही है, ये बुल्स है जो ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट? ये बियर्स है जो नीचे लेके जाना चाहते हैं, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? व्हेन डू यू थिंक बुल्स विल कन्वर्ट, बुल्स विल गिव अप टू बियर्स? जब बियर्स का फोर्स ज्यादा होगा, इजंट इट? I'm not good technically, you know, I'm sorry, matlab, I'm not that, I can't use paint and pointer and all, मेरे को नहीं आता use करना, I'm so sorry, although it's very messy thing, but what do I do? See, suppose this is a tug of war happening between bulls and bears, right? Who's gonna be winning? अगर suppose ये अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, बुल्स अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, बियर्स अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, who will win? Whichever has the higher force. एक समय पे दोनों का फोर्स इक्वल होगा। सपोज बुल्स आर पुलिंग, बियर्स आर डोमिनेटिंग, सो बियर्स आर डोमिनेटिंग। At one point, what will happen? Both bulls and the bears will have equal force, and then bulls will become strong, and that is when the reversal will take place. Okay, I hope you can understand this part. This is very simple stuff. So once the bulls have come in, इस दोजी ने मुझे बताया कि बुल्स आ गए, I would still wait for it to give me a breakout above 10 SMA. Once it goes above 10 SMA and it comes into, जो मैं अगला पॉइंट बोलने वाली हूँ ना, उसको प्लीज ध्यान से सुनना। when I scan, I know यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। I need two things now. I need good delivery percentage, I need good open interest, right? दो चीजें चाहिए मुझे। Once the breakout has come, once I know my setup, once I've scanned the whole entire space, I need two things to nail it completely. What are the two things?
फर्स्ट डिलीवरी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, दूसरा इसमें लिखो क्या हो, दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग, लेट मी सी इफ यू हर्ड इट और नॉट, लेट मी जस्ट सी, एवरीबॉडी राइट, ओपन इंटरेस्ट, यस। अब आप कहां देखोगे लाइव मार्केट में, कहां देखोगे, वेयर विल यू सी डिलीवरी एंड वेयर विल यू सी द ओपन इंटरेस्ट, कहां देखोगे, एनएससी पे देखोगे, राइट? सो गूगल इट हियर, OI Spurts, यहां पे देखो आपको सारा ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा, राइट? किसमें कैसा ओपन इंटरेस्ट है, राइट? यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लो डेटा को, यू कैन, आई थिंक इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड, ये आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा मिल जाएगा, राइट? आपको इसको ओपन इंटरेस्ट देखना है 28 मार्च का नहीं देखना है हमको, बाय अंडरलाइंग राइज इन OI विद राइज इन प्राइस, मैं ये देखती हूँ। और इसमें हमको इंडेक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्टॉक्स, राइट? और जो एक्सपायरी है वो भी हमको अप्रैल वाली एक्सपायरी चाहिए, जैसे आप देखो यहाँ 25 अप्रैल वाली एक्सपायरी में देयर इज ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ से आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, राइट? और मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी 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 इंडेक्स हमको चाहिए नहीं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्पर्ट इन ओपन इंटरेस्ट, तो स्पर्ट इन ओपन इंटरेस्ट में आपको यहाँ दिख जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको किस किस में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। आई वुड लाइक टू सी, मैं मेरे पास तो एक्चुअली ना सॉफ्टवेयर है तो उसमें मुझे दिख जाता है, बट आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो राइट, यू गो टू मनी कंट्रोल, इंक्रीज ऑन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और आप इसमें अगर चाहो तो आप यहाँ पे देखो, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट है, राइट? यू कैन डू क्लिक ऑन द परसेंटेज चेंज पे आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए, OI परसेंटेज चेंज, आपको पता लग जाएगा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन सब में हाई ओपन इंटरेस्ट है, राइट? और एक्सपायरी डेट भी आपको केवल अप्रैल की लेनी है, नॉट मई, ओनली अप्रैल की लेनी है, राइट? या यू हैव टू सी इन द लाइव मार्केट, और आपको टॉप पे दिख जाएगा लाइक हाउ द ओपन इंटरेस्ट इज डेवलपिंग, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख जाएगा, आप देखो बजाज फिनसर्व, और उसके बाद आपको इसमें ही देखना है, एनएससी पे आपको चेक करना है कि मार्केट डेटा में देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इक्विटी मार्केट, राइट? व्हाट इज हैपनिंग इन द इक्विटी मार्केट, कि कहाँ पे कैश डिप्लॉय हो रहा है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि कहाँ पे कैश डिप्लॉय हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम, ये वैल्यू इन करोड़ है ना, यहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज कर लो डेटा को पूरा, तो आपको दिख जाएगा कि SBI लाइफ में अभी अरेंज नहीं हुआ है, या सो आप देखोगे HDFC बैंक, रिलायंस, तो आप नोटिस करोगे कि HDFC बैंक, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस हमेशा बहुत टॉप टॉप इनमें कैपिटल हमेशा ही डिप्लॉय होती है, तो ये आपको इग्नोर कर देना है। बट कोई अनयूजुअल सा स्टॉक दिखाई दे, जैसे लाल पैथ जिस दिन दिया था, लाल पैथ यहाँ दिख रहा था मुझे, जिस दिन मैंने आपको रिलायंस दिया था, तो रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट भी सडनली बहुत हाई था, राइट? नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी ओपन इंटरेस्ट शुड बी चेक, नहीं, डोंट चेक मे, यू जस्ट चेक अप्रैल, अभी वी आर इन, बिकॉज yesterday we couldn't trade in March, so we have to see the April month only, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि LNT में बहुत अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं, मैंने LNT को भी चेक किया था, आई वांटेड टू गिव इट बट डिडंट गिव इट, LT देखो आप, तो दो चीजें से आपको ये बैंग ऑन बनेगा। LT ने भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, और LT वाज आल्सो टेकिंग अ गुड सपोर्ट, सी ये देखो LT का सपोर्ट देखो यहाँ पे, कितना बढ़िया ट्रेड है ये, दिस इज अ फिनोमिनल ट्रेड, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस और क्या मूवमेंट आया इसका, आप यहाँ तक भी लेते हो तो भी आपको 1:5 से ज्यादा मिलेगा, राइट? LTTS
हाँ, तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ रहा है, और ये आपको दिखता रहेगा, लाइव मार्केट में फ्रेश होता रहेगा। आप इसको ऑर्गेनाइज करके देख सकते हो, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो। वहां से आपको इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। देखो सेल में इंक्रीज हो रहा है 25 अप्रैल के लिए, सेल में जीएमआर इंफ्रामेट, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेटल सेक्टर जो है आगे चलने वाला है। देख रहे हो आप, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेटल सेक्टर, बीईएल, आईओसी, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, टाटा मोटर्स, फेडरल बैंक, आईएक्स, टाटा पावर, ये सारे आप देखो मेटल सेक्टर जो है ना, नेशनल एल्यूमिनियम, वीईडीएल, नेक्स्ट मंथ में इनमें अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं। सो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस ऑन, हाँ, मिनट बाय मिनट, इट चेंजेस मिनट बाय मिनट because there is activity happening na, people are buying, you buy call option or put option, it changes, right? So open interest tells you everything about how people are trading in a particular this thing. What does open interest indicate? It tells you open contracts, how people are buying or selling. और हमने क्या यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन ऑल फ्यूचर्स। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो इंक्रीज इन ओआई विद इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओआई विद इंक्रीज इन प्राइस। तो मुझे चाहिए वो ओनली दो स्टॉक्स जिनका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? मतलब लोग बाय कर रहे हैं। I hope you all understand the concept of open interest. Concept of open interest में चार possibilities होती हैं, open interest and price. If open interest is going up and price is going up, मतलब there are good probability of the stock to go up. If open interest is going down and price is going down, means people are unwinding their position. Open interest is going up and price is going down, that means short build up. Or OI is going down and price is going down, means price is going up, means it is unwinding, short covering, right? तो ये आपको चार पता होता है, बट मैं केवल काम करती हूँ because I am a buyer all the time. I will only look for positive build up. So I only look for open interest ऊपर जा रहा है प्लस प्राइस ऊपर जा रहा है, दोनों चीजें मेरे लिए ऊपर जानी चाहिए, तो I will only concentrate in this space. So यहाँ मुझे मिल गया, प्लस मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कहाँ पे अच्छा खासा कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, दोनों चीज कंबाइन होगी और मेरा सेटअप, एंड दैट्स बैंग ऑन ट्रेड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कुछ किसी को कोई डाउट कुछ हो तो यहाँ पे बोलो। देखो दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम you get so used to of doing it that it's fraction of a second. For me it's just too easy, right? But you have to do it day in and day out, week after week, month after month. So pehla cheez is setup, right, which is simple, which I told you, 10 SMA taking support, 50 SMA. But I'm still not sure whether this stock is going to go up. So what I need to see that the price that it is giving me, you know, there has to be a high delivery percentage, which I get to see from here कि आज अच्छे खासे volumes आए, और फिर मुझे increase in price चाहिए with an increase in the open interest that I get from here. And if I get all four of them at one place, it's my bang on trade. How many hours we need to spend per day? So see, I spend only from 9:15 to 3:30. After that I make video and that's it. Between that time only I keep doing my research. These are all FNO stocks. These are all FNO stocks. See, volumes comes from the volumes are basically how much capital has been deployed ना. See, volumes अगर high volume होगा, और एक और चीज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आना तो एक चीज कर सकते हो आप लोग, you go here, this is a space where you get, you know, the stocks which are being traded. So I have used Indian market, and I have used unusual volumes, right? What do I know? What I want कि unusual volumes मिले कहीं पे, right? This is simple, this is free with trading view. अगर आपके पास premium version है, you are going to the office, तो आप 1 घंटा दे दो सुबह का, 1 hour is good enough. You can come back and do the research. Yeah. You come here and use, there are many filters out here, right? Most capitalized, volume leaders, top gainers, top losers. I use unusual volume.
on a particular day, where is exactly the unusual volumes are coming in. Now what you need to do is you come to volume into price, right? This is something that you need to focus upon. And यहाँ पे देखो कहाँ पे high volume is being traded. This will give you, or abhi see, look into some VIP industries. You saw, I don't know how many of you traded with Pankaj, VIP industries. VIP industries, it has given a good trade from the bottom. When I say buying is coming from the volume bottom level, see, this is a very, very good trade. Have a look at it. So this place is telling you that there is a accumulation happening at this level. Next is slight gap up. Look at this breakout, and this has unusual volumes. VIP industries, Kotak Bank, Maruti, Bajaj Finserv. अगर आपको कैश में ट्रेड करना है, यहाँ से आप ले सकते हो 100%. और आपके पास जो भी Century Textile, right? If you remember, Century Textile is also 10 SMA taking a support, right? 10 SMA taking a support. That's why I didn't wait for it. I immediately gave it the moment it broke this high, right? LTIM, Nestle India, Asian Paints, Asian Motors, Ultratech Cement, HBSC, Aegis Chem. This is again very, very good trade because moving average, यहाँ देखो ये गिरा है price, but moving average has not gone below 50 SMA. Many a times it has given a breakout. यहाँ पे देखो ये जगह पे breakout दिया था and it gave a good move, right? वो फिर से continue रहा. So this is how you can filter out DMart. Anybody traded DMart? DMart we have given when it was, हमने इसको कहीं 4200 के आसपास दिया था जब ये यहाँ पे it came in over here only, unusual volumes में. Does unusual volume seen one? No, in the same live market. You have to see it in the live market, but it can continue for the next day. Like for example, Bajaj Finance, right? Bajaj Finance was one stock जिसमें unusual volume a day before had come, but breakout नहीं आया था. इसमें यहाँ पे ब्रेक, यहाँ देखो इसको मैंने 4 दिन होल्ड किया था. इस दिन unusual volumes आ गए थे, but when it broke the past barrier, इस जगह पे ये बैरियर, तब इसमें शानदार ब्रेकआउट आया था. ये जो बैरियर था ना, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट बैरियर. once it was broken, it moved almost like 500 points. Thank you Anurag, I'm a born teacher, यही काम है मेरा, पढ़ाती है. मैम unusual volumes, can you explain one more time? See, unusual volume means कि usual volumes अगर किसी के 10,000 है तो suddenly there are several lakh of volumes. Even आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा volume spurts. यहाँ पे भी ना आपको volume spurt मिल जाएगा NSE पे, Nifty 50 कहीं पे आपको volume spurt मिल जाएगा. उसमें भी आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आज unusual volumes आ रहे हैं. ये जैसे यहीं से आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम्स को अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहीं दिख जाएगा कि कहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है. ITC, TCS, तो ये डेटा है, ये दिस इज अ डेटा यू नीड टू कोलेक्ट. बैरियर इज विक, यस, जो भी जहां से रिवर्सल होता है ना, दैट इज बैरियर. प्लीज एक्सप्लेन बैरियर, हाउ वी सी एग्जैक्टली विच प्लेस. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो हियर. यहाँ पे ना देखो दो तरीके के बैरियर्स होते हैं. एक तो होता है विक का बैरियर और दूसरा होता है ओपन इक्वल टू हाई का बैरियर, राइट? यहाँ पे देखो आप, पहले इस ग्रीन कैंडल ने विक लिया. कैन यू सी दिस? इस कैंडल ने विक लिया. सॉरी, इसको हटा देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डे ओपन इक्वल टू हाई लगाया. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बैरियर है. ये क्रॉस होगा तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगा. एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं मैंने कहाँ दिया था बजाज फाइनेंस, तो हमको क्लियर हो जाएगा. बजाज फाइनेंस, ये देखो आप 6,880. ओके,
ये कहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये वाली लाइन कहाँ पे लगी है, ये वाली, राइट। बट उस दिन क्या हो गया था, ये इसने अपना, ये देखो, ये दिन पे हमको देना था बट ये कैंडल बन चुकी थी, ये डे हाई बन चुका था। ये कहाँ पे है, देखो पढ़ो उधर ऑन द अदर साइड, ये कहाँ पे है, 6880 पे है, राइट। डिड यू सी इट, 6880, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इमीडिएटली वी एंटर्ड इनटू इट। तो आई एवरीथिंग इज लॉजिकल, सिंपल एंड बैंग ऑन, क्योंकि डेटा मिल गया, सेटअप मिल गया, और ट्रेड फ्रॉम द बॉटम बन गया, पास्ट बैरियर्स ब्रेक हुए, अंटिल पास्ट बैरियर्स ब्रेक आई विल नॉट टेक एन एंट्री, राइट। पीपल वुड लाइक टू कैपिटलाइज हियर, अगर हम, वो भी बन सकता था एक ट्रेड कि ये डिस्टेंस तो कवर होगा ही होगा, बट आई वुड लाइक ऑल दिस पास्ट बैरियर्स टू बी गॉन एंड देन यू विल सी अ गुड ब्रेकआउट। नहीं, वन डे में करना है आपको सारी एनालिसिस इन वन डे, नेवर ट्रेड इन, अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है ना, ऑलवेज मेक डिसीजन ऑन वन डे और वेट फॉर योर कंडीशंस टू मीट। एज आई टोल्ड यू, आई न्यू कि इसमें बाइंग आ रही है, राइट, ये मेरा बैरियर था। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं पे हमको, यहाँ पे एंट्री मिली है इस जगह पे, थोड़ा सा और नीचे। नाउ आई हैव टू हैव अ कंफर्मेशन कि माय सेटअप इज गोना वर्क। पहली बात, ये 10 SMA 50 SMA के ऊपर चला गया। दूसरा, आई वाज वेटिंग फॉर इट टू गिव मी अ डेटा फ्रॉम हियर, यहाँ पे बजाज फाइनेंस होना चाहिए और यहाँ पे बजाज फाइनेंस होना चाहिए एज अ टॉप गेनर, वन ऑफ द 1 2 3 4 नंबर में ही होना चाहिए। व्हाट विल बी द टारगेट, नहीं ऐसे टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, मैंने तो कल प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज 3 दिन की छुट्टी थी। अब ये क्या होगा कि देखो 10 SMA यहाँ पे है, 50 SMA यहाँ पे है। आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। पहले तो ये 10 SMA को ऊपर जाना पड़ेगा, ये 10 SMA ऊपर जाएगी और ये क्रॉस करेगा, थोड़ा देर ये साइडवेज जाएगा, थोड़ा देर ये साइडवेज जाएगा, फिर आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा 7800, बट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो ना 10 SMA यहाँ पे है, रीसेंट पास्ट में भी बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है, ये हुआ है, बट आई वुड बी स्टैंडिंग आउट एंड वॉचिंग। आई बुक माई प्रॉफिट एंड आउट and really made good money, really made good money. Unusual volume has to be checked in day, हाँ, no, unusual volume आपको 15 मिनट के बाद देखना है। वन मार्केट ओपन्स, आप 15 मिनट में देखोगे और लगा के देखोगे। फॉर एग्जाम्पल वीआईपी में देखो आप, जैसे ही अनयूजुअल वॉल्यूम्स आएंगे ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और आपको फिर मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन इज द मॉर्निंग रेंज ब्रेकिंग आउट। आप 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको लगता है, आपको पता है कि यहाँ पे आज अनयूजुअल वॉल्यूम है, गैप अप ओपनिंग है, कंसोलिडेशन के बाद ये कंसोलिडेशन जोन है, उसके बाद गैप अप ओपनिंग है, यू कैन डू 5 मिनट्स, यू कैन डू 15 मिनट्स एंड ट्रेड। सी हियर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड, यहाँ से आप लो इस जगह पे और यहाँ तक आपको मूवमेंट मिलेगा, इमीडिएटली इमीडिएट मूव है। I find volume come first, then breakout. Of course, because if people are not buying, how the volume will come? Volume will only come when there is buying coming in. On first you will see the volume, then you will see the price jump, because there is a auctioning going on between the buyers and the sellers. Suppose buyers are aggressive, the price will start jumping. Volume will cause the breakout, definitely. So see here, यहाँ पे देखो unusual volumes है। पीछे के दिनों में क्या था, ड्राई वॉल्यूम थे, ड्राइड अप वॉल्यूम थे, राइट, एंड सी हाउ इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। एक बार प्लीज ट्रेडिंग व्यू में दिखाने कैसे चेक करेंगे, तो आप ट्रेडिंग व्यू में देखो, ये लाइन है ना यहाँ पे, स्टॉक स्क्रीनर, बाइन एडिटर, स्ट्रेटेजी टेस्टर, यहाँ जाओ और इसको पुल अप कर लो ऐसे, ठीक है। आपके पास यही सब आ जाएगा। ओवरव्यू पे जाना है आपको, ओवरव्यू पे जाके आपको एंड में यहाँ पे इंडिया कर लो। मैं यूएस का भी देखती हूँ कि यूएस में क्या हो रहा है। आई यूज द सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉर यूएस स्टॉक्स एज वेल। यहाँ पे जाके मैं इसको मार्केट्स में जाके मैं इसको यूएस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ये वाला, और इसको अप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि कहाँ पे अनयूजुअल वॉल्यूम आ रहे हैं। यहाँ पे देखो अनयूजुअल वॉल्यूम आ रहे हैं, वॉल्यूम एंड प्राइस को मल्टीप्लाई कर लो और फिर अपने सेटअप पे लगा के देख लो। सिंपल, बहुत सिंपल है। यूएस मार्केट में आई रियली ट्रेड लाइक दिस। आई विल शो यू, कुछ देखते हैं। सो सी हियर,
वॉल्यूम इनटू प्राइस, SPY, ये तो ETF है, राइट? IWM, सी यहाँ देखो, इट हैज क्रॉस्ड इट्स पास्ट बैरियर, जो भी ये स्टॉक है, iShares Russell, इट्स क्रॉसिंग इट्स पास्ट बैरियर्स, राइट? अनयूजुअल वॉल्यूम्स के साथ। और देखते कहीं अभी इसमें ना सब कुछ है, बाय भी है, सेलर्स भी है, हम केवल बाइंग पे जाते हैं। XOM, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, इस तरह के जब आपको स्टॉक दिखता है ना, तो ये इसका मतलब सिंपल बाइंग इज कमिंग। अनयूजुअल वॉल्यूम्स, GLD, दिस इज अ गुड ब्रेकआउट। और देखते हैं कहीं पे, ये भी अपने आप ही रिकमेंड करता है स्ट्रॉन्ग बाय। और सी देखो यहाँ कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, आफ्टर लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन हैज बीन ब्रोकन and gap up opening, so next day in the morning you can go buy above this place, right? और XLE अच्छा खासा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो वी हैव एन एंट्री। XLV, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, किसी भी कंट्री का आपको ढूंढना हो, आप यहाँ से ढूंढ के और यू कैन ट्रेड इन दैट, है ना? तो यहाँ से मैं ढूंढती हूँ US मार्केट के स्टॉक्स। इन दिस केस हाउ वी सेट टारगेट, किस केस में? आफ्टर कंसोलिडेशन मिनिमम 5 टाइम्स, मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस है 1:5 का रेशियो होता है। Without premium trading view, can we? I think you should have it. You should be able to try it. You can try it and let me know. Just summary for understanding: 10 SMA should take support on 50 SMA. Check for delivery percentage. Yes. OI increase and OI increase. Yeah. OI increase, delivery percentage. Check for unusual volume. No, not necessarily. उसके बाद आपको ये unusual volume की जरूरत नहीं है. Should break out past balance. बस. वो एक और तरीका मैंने आपको बताया। डिलीवरी परसेंटेज यहीं से आपको दिख जाएगी ना, डिलीवरी परसेंट आप चाहो तो इसकी ईच ऑफ देख सकते हो जाके, बट यहीं पे देख लो कि कितनी वैल्यू डिप्लॉय हो रही है, कितना वॉल्यूम्स हो रहा है। अनयूजुअल वॉल्यूम हो गए तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि आज अच्छे से वॉल्यूम जाए। ड्यूरिंग लाइव क्लास यू टॉक अबाउट बिल्डअप्स, यही बिल्डअप्स है, दिस इज अ बिल्डअप, मतलब दिस इज अ बिल्डअप, राइट? OI बिल्ड हो रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, OI इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स अ बिल्डअप। एंड व्हाट विल हैपन जब लाइव मार्केट होगा ना, तो आप ये जो परसेंटेज देख रहे हो ना, ये कीप चेंज होगी, दिस विल कीप चेंजिंग, सो यू विल नो अच्छा इट्स इंक्रीजिंग, प्राइस भी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और OI is also going up. Do we not have to look at the fundamentals? No, because we are just trading for 2-3 days. We're not trading for 10 years. When we're trading for 10 years or 1 year, you need to check. But these are breakout stocks. Just an Nifty 50 के stocks है या FNO के stocks है, तो fundamentals will be good. Please show how to check past barriers. So past barriers देखो, कहीं पे भी देखो आप, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का ही मैंने आपको दिखाया था, ये पास्ट बैरियर था, राइट? दिस वाज द पास्ट बैरियर। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ प्राइस रिजेक्शन, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, और वहां से मार्केट गिरा था। एक पास्ट बैरियर ये भी है, बट जब इस तरह से मार्केट चला गया ना ऊपर, एंड ये प्राइस जो है 50 SMA और 10 SMA के ऊपर है और 50 पे सपोर्ट ले रहा है, तो डेफिनेटली द वॉल्यूम्स आर कमिंग, OI इज बिल्डिंग अप, मींस स्टॉक इज रेडी टू गो अप। वॉल्यूम देखना है कि वैल्यू, दोनों देखना है आपको, क्योंकि वैल्यू कितना डिप्लॉयड है उस पर भी डिपेंड करता है, कितने करोड़ लगे हुए हैं। मैं वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू को देखती हूँ, मैं वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू को देखती हूँ। यहाँ पे कोई आपको अनयूजुअल वॉल्यूम दिखाई दे ना, जैसे देखो भारतीय एयरटेल में अनयूजुअल वॉल्यूम है, LNT में अनयूजुअल वॉल्यूम, वैल्यू है, मतलब ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो ये मेरे, बट इसमें 2 स्टैंडर्ड है, ये HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ये तीनों स्टैंडर्ड है, यही मिलेंगे आपको, ये कभी ऊपर नीचे नहीं होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा बहुत केयरफुली ट्रेड करना होता है। Please show more examples of barriers. So let's see an example of अभी कोई और सब कौन सा ट्रेड दिया था, ई मुद्रा दिया था, तो उसमें तो बहुत क्लियर था। लेट्स डू देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलमोस्ट टेकिंग अ सपोर्ट, राइट? बट मैंने अभी ना क्या डिसाइड किया है, मैं आपको ऑप्शंस
आज का तो ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को ना ऑप्शंस की भी थोड़ी सी डिटेल्स, हाँ इंडस टावर, इंडस टावर ने ब्रेकआउट ले लिया था, बट बिफोर आई गो ऑन टू इंडस टावर आई वांट टू टेल यू कि इसमें देखो बिल्डअप हो रहा है, राइट? प्राइस नीचे गिरा है, प्राइस नीचे गिरा है, दिस दोजी व्हिच इज टेलिंग मी बायर्स हैव कम। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 266.5 से आपको ब्रेकआउट देगा और यहाँ तक का टारगेट आपको पक्का मिलेगा इसमें, है ना? ओएनजीसी, यू आर राइट, बट ओएनजीसी और ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स है ना, इनके ऑप्शंस बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं। ये बहुत बढ़िया बिल्डअप है इसमें, ये कैश के लिए बढ़िया है, एफएनओ के लिए बढ़िया है, बट इनके ऑप्शंस में मेरे को ना मजा नहीं आता ट्रेड करने में। मैंने क्या सोचा, अभी जब से मैं कुछ समय से बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे रही हूँ, एक ही चीज मुझे समझ में आई कि ऑप्शन अगर ट्रेड करना है ना, तो इन इन ट्रेड्स में करो जो 3000 से ऊपर जिनकी वैल्यू है, 3000 से ऊपर या 2500 से जिनकी ऊपर वैल्यू है ना, इनके ऑप्शंस आपको 30-40 पॉइंट्स आराम से दे देंगे, राइट? तो आई एम गोइंग टू ट्रेड ओनली इन दीज ऑप्शंस। बाकी ओएनजीसी, आईओसी, इनमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन राइटर्स होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है, मेरा आई हैव अ कजन ऑफ माइन, he's got many crores, I don't even know how many crores, तो ये वो सारा इन्हीं में ऑप्शन सेल करके बैठे होते हैं, आईओसी, ओएनजीसी, एचटीपीसी। तो इसमें आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑप्शंस, क्योंकि लक की बात होती है। आई विल बी टेकिंग ऑप्शंस इन दिस, ये इनमें बहुत बढ़िया मूव मिल जाते हैं, 100-200 पॉइंट्स मिल जाते हैं आराम से। केईआई इंडस्ट्रीज, हाँ, सो केईआई इंडस्ट्रीज देखो मैंने यूट्यूब पे भी दे रखा है, लुक एट हाउ स्ट्रांगली इट्स बिल्डिंग अप, हाउ स्ट्रांगली इट्स बिल्डिंग अप, है ना? अपार इंडस्ट्रीज दिया था, अपार इंडस्ट्रीज दिया था, और ये देखो इसीलिए दिया था, बिकॉज आई गॉट इट इन द लाइव मार्केट, ब्रेकिंग द पास्ट बैरियर्स, सी हाउ इट ब्लास्टेड, इट जस्ट वेंट अप, राइट? ये टाइम टेस्टेड है, आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, इट्स प्रीटी मच टाइम टेस्टेड। अगर ये पास्ट बैरियर ब्रेक कर रहा है तो आपको उसी दिन बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जे जे अच्छा, एमआरएफ में क्या लगता है? मेरे को कुछ भी नहीं लगता, मैं अगर डेटा मिलेगा किसी दिन तो दे दूंगी, अदरवाइज आई डोंट लाइक टू प्रिडिक्ट स्टॉक्स, डेटा हैज टू टेल मी। अभी कुछ नहीं लगता है, अभी इसमें देखो कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल पे, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपको मिल सकता है। there's no buffer, you just take an entry if the past barriers are broken. Sometimes volume will be good but stock falls, सो इसका मतलब कि हाँ, बैरियर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, वो वॉल्यूम सेल के वॉल्यूम से, अगर स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम सेल के वॉल्यूम है। हीरो मोटो इज अ गुड ट्रेड एंड आई विल बी वेटिंग फॉर दिस टू गिव मी अ गुड ब्रेकआउट, इसमें मुझे करना है। हीरो मोटो स्टॉक, या हैव अ लुक एट इट, दिस इज, कई बार यूट्यूब पे दे चुकी हूँ, बट ये अभी बैरियर्स क्रॉस ही नहीं किया इसने। जिस दिन क्रॉस करेगा ना ये, आपको ये मूव मिलेगा, और ये 4000 4700 का स्टॉक है, अच्छे से इसमें ट्रेड करेंगे। जे JBCH फार्मा, JBCH केमिकल्स एंड फार्मा, हाँ, सो यू कैन टेक अ बाय ऑन दिस, बट ये ना स्लो मूविंग स्टॉक्स है, अगर कहीं पे मुझे सपोर्ट मिल रहा होगा ना, जैसे यहाँ देखो फास्ट मूव आया है, आई लाइक फास्ट मूव, आई लाइक मोमेंटम, आई डोंट लाइक, आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो डोंट लाइक अगर कभी स्लो मूवमेंट आता है तो। अपार गेव ब्रेकआउट जस्ट आफ्टर कंसोलिडेशन बट यू गेव एंट्री लेटर, नहीं तो वो दिखा नहीं मुझे, लाइक आई कुडंट सी व्हेन यू आर सिटिंग इन द मार्केट, लाइक ये लाइव मार्केट में दिया था अपार इंडस्ट्रीज, मैंने दिया, कई बार आपकी आंखों से निकल जाता, मतलब छूट जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर मैंने देखा होता ना इसको, अगर मैंने इसको देखा होता ना, देखो इसने बार बार सपोर्ट लिया है, अगर मैंने इसको देखा होता तो मैं ट्विटर पे इसको यहीं पे डालती, इस जगह पे, आई वुड हैव गिवन अ बाय एंड एट दिस प्लेस, ये जगह पे, इसी जगह पे मैं देती, और आपको सीधा का सीधा 10% का मूव आराम से मिलता स्ट्रेट अवे। सो यही तरीका है मेरा, कि उसमें मुझे अगर वॉल्यूम्स आते हुए दिख जाते हैं, आई नो दैट मूविंग एवरेज टेकिंग सपोर्ट, मोर वॉल्यूम्स बीइंग डिप्लॉयड, so I can expect some good move. Love the examples, how to please
show how you go about identifying the stocks. That is, do you go manually check? No, I check here. This is one. And Pankaj VCP scanner. Pankaj VCP scanner you can use. Right? You can use Pankaj VCP scanner. और otherwise you can go for unusual volumes here. कहीं पे यहाँ पे भी एक है वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग स्टेक्स. मैं यूज नहीं करती हूँ ज्यादातर. कहीं पे एक वॉल्यूम वाला है. आप VCP स्कैनर यूज कर लो, वो बहुत बढ़िया है. और मेरा एक स्कैनर है, वो मैं आपको वो भी मैं आपको दूंगी. डैशबोर्ड. सो मेरा एक जो स्कैनर है ना, वो सिंपल स्कैनर है, उससे मुझे वॉल्यूम्स पता लग जाते हैं कि कहाँ डिप्लॉय हो रहा है. वो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी किसी दिन लाइव मार्केट में. ये है मेरा स्कैनर कि 1 minute वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन यस्टरडेज 5 minutes वॉल्यूम बाय अमाउंट टू. पहले मिनट में. फिर 3 minutes में 3 times होना चाहिए, 5 minutes में 5 times होना चाहिए, 10 minutes में 9 times. ये मेरा स्कैनर है. उसमें आपको देखो मिल जाएंगे सारे स्टॉक्स. जियो, CL कॉर्पोरेशन, VIP, रेप्रो, वन लाइफ, बोधी ट्री, whatever. इसको आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, इसको FNO में भी कर सकते हो, एंड यू कैन गेट गुड स्टॉक्स. बजाज फाइनेंस, कैनरा बैंक, डॉक्टर रेड्डी, और है ना. मैनकाइंड फार्मा. सो मैनकाइंड फार्मा की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट मी टेल यू. मैनकाइंड फार्मा में ना, जिस दिन ये डे, ये देखो कितना बढ़िया इसने मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, पास्ट बैरियर ब्रेक करा है. यहीं पे मैंने दिया था बाय, राइट? क्योंकि जिस दिन मैंने इसको देखा था, इस दिन इसके अंदर 3000 करोड़ डिप्लॉय हुआ था. वन ऑफ द हाईएस्ट. All of them are for positional. 1 day time frame means positional, no intraday, right? स्कैनर में अभी जब सिखाऊंगी तब आपको स्कैनर का लिंक दूंगी. अभी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी. हाँ, ऑप्शंस थोड़े बड़े वैल्यूज में करो. 2000 के ऊपर हो, 2500 के ऊपर हो प्राइस. उस सी ऐसे मैं नहीं बता सकती हूँ कब लेना है. मैं लाइव मार्केट में आपको बताऊंगी कब लेना है, क्योंकि अभी नहीं पता है मुझे कब लेना है. मैं लाइव मार्केट में बताऊंगी. अभी नहीं लेना है. प्लीज शो बॉटम आउट रिवर्सल स्टॉक. सो बॉटम आउट, जैसे डॉक्टर लाल पैथ मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये बॉटम आउट स्टॉक है. दिस इज ऑल्सो अ बॉटम आउट स्टॉक. यहाँ पे 200 पे सपोर्ट दे रहा है, फिर 10 के ऊपर चला गया. मैं यहाँ कहीं भी नहीं लूंगी एंट्री. मैं कहाँ पे एंट्री लूंगी? जब ये सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर होगा, दैट इज व्हेन आई विल टेक एन एंट्री. ये मुझे सारा सपोर्ट मिल गया, 100% कंफर्मेशन हो गया, और यहाँ से आई विल बाय. दैट्स गोइंग टू बी माय एंट्री. आई विल गिव यू पोजिशनल एज वेल, नेक्स्ट क्लास में देती हूँ. आज के लिए इतना प्रैक्टिस करो. देखो यहाँ कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट लगा है डॉक्टर रेड्डी को, एंड लुक एट द मूव. आप लोग अपने आप ही थोड़ा सा ना बैक टेस्ट करो, और कल मंडे को लाइव मार्केट में देखो. आई ट्राई टेक अनदर क्लास एंड वेयर आई डिस्कस द स्कैनर. पहले स्कैनर डिस्कस कर लेंगे, फिर लाइव क्लास में उन स्कैनर्स को वर्क करके देखेंगे. मंगलम सीमेंट में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया. आप देखो मंगलम सीमेंट में भी ऐसे मैंने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया था अभी रिसेंटली. नहीं, मंगलम नहीं था, कोई और था. स्टार था शायद. स्टार सीमेंट. ये देखो यहीं पे हमारा ट्रेड बना था, इस जगह पे. whenever it's taking a support, यहाँ पे ट्रेड बन रहा था. यहाँ देखो बायर्स एक्टिव है, गिरा, इसी जगह से सपोर्ट लेके वापस गया. और अगर आप यहाँ पे भी लेते तब भी आपको देखो अच्छे खासे मूवमेंट मिलते 182 से 219. What is the significance of 200 SMA? Deep support, very very deep support. कभी जब तीनों averages बिल्कुल पास में आ जाती हैं और 200 SMA is not broken, means it's a very strong consolidation, very very strong consolidation. Deep support और deep resistance. ऑप्शन प्राइस, हाँ. सो ऑप्शन प्राइस फॉर एग्जांपल अगर हमें बजाज फाइनेंस करना है तो बजाज, ये ना मेरे को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा जब नेक्स्ट क्लास में. बट मैंने अपने ना रूल्स बनाए हैं. रूल क्या है कि ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करना है
मैम प्लीज रिव्यू 2 स्टॉक्स नेम एज वेल, टाटा एलेक्साई, इंडिया होटल्स, बोथ आर लाइन। हाँ, सो मैंने टाटा एलेक्साई के ऊपर कल ही एक रील बनाई है, यू विल बी गेटिंग इट टुडे और टुमारो। टाटा एलेक्साई, टाटा एलेक्साई इज अ बॉटम आउट स्टॉक। अब कोई पूछ रहा है ना मुझसे कैसे बॉटम आउट है, ये 2-3 डबल ट्रिपल बॉटम लगा चुका है और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ देखो कहीं पे मैंने इसका बाय दे रखा है, ये मूविंग एवरेज इज टेकिंग सपोर्ट 7,500 और वहां से कहाँ गया था ये 9,177। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आपको दिख जाएगा मेरा जहाँ पे भी है ना। ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं, ऐसे इतना सारा नहीं मैं बता सकती है एक ही बार में। आज केवल पोजिशनल की बात थी, राइट? पोजिशनल कैसे करते हैं उसकी बात हुई थी। अब मैं आपको रोशन ने पढ़ाया तो है, इन डिटेल आपको बताया। नागा आल्सो इज टेलिंग यू। अगर देखो जो मुझे पढ़ाना था वो नागा, रोशन, पंकज, योगेश, विजय, ये सब ने पढ़ाया है। मैं वो सब पढ़ाई दोबारा लेके बैठूंगी तो कोई पॉइंट क्या हुआ? आप जाके नागा की क्लासेस देखो, है ना। हेजिंग आपको नागा ने सिखाई है, सब कुछ सिखाया। आई डोंट मैं आई डोंट थिंक सो आई शुड गो दैट, इजंट इट? I have no idea how much down, but I will wait for the reversal sign. जब सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला जाएगा टाटा टेक, देन ओनली आई विल एंटर इनटू इट। रिकॉर्डिंग होगी पक्का। मैं सी आई थिंक आई एम राइट नाउ वेरी टायर्ड बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया बिकॉज द क्लास वाज सो अर्ली। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराती हूँ। वी डोंट हैव एनी क्लास फ्रॉम मिस्टर नागा एंड योगेश। आप कौन से बैच के हो संदीप? विच बैच आर यू फ्रॉम? दिसंबर ना, तो अभी आएंगी आपकी क्लासेस तो लाइंड अप है ना अभी, तो आपके बहुत अभी यू विल रीच देयर, है ना। सो दोज हु आर न्यू दे विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, योर ऑल द मेंटर्स विल कम वन आफ्टर द अदर, है ना। सो सारे मेंटर्स आपको सिखा रहे हैं, मैं केवल अपना सेटअप ही आपको बताऊंगी, बाकी सब मेंटर्स ने पढ़ा दिया है। डोंट आस्क मी कि नागा क्या करता है, योगेश क्या करते हैं, ये क्या, मैं वो सब नहीं करा सकती हूँ, वो ऑलरेडी उनको इसीलिए रखा है कि वो आपको एक्सप्लेन करें, है ना। So I think that's it from my side today. और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ADF Foods, ADF फूड अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अगर आपको देखनी है तो इट्स गोइंग टू कम अबव 200 समथिंग, यहाँ पे 224। ऑप्शंस में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बिकॉज ऑप्शंस के रूल्स में आपको दूंगी सारे, मैं क्या फॉलो करती हूँ, आई विल गिव इट यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सपोर्ट लेने के बाद वेट अ सेक, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं ले भी नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम रियली टायर्ड नाउ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे मत भेजो। एक सेकेंड, मैं पहले इनका ले रही थी क्वेश्चन। मैडम 10 SMA 50 SMA का सपोर्ट लेने के बाद एंट्री लेनी है। अभी सब तो बताया आपको कि रेजिस्टेंस देखना है आपको, ओपन इंटरेस्ट देखना है आपको, डिलीवरी परसेंटेज देखना, हाउ इज द डिलीवरी हैपनिंग, वो सारी चीजें कंबाइन करनी है। पूरा ये 1 घंटे से तो यही तो मैं समझा रही हूँ। अब फिर अभी क्यों पूछ रहे हो मुझसे? सेम चीज मैंने आपको बताई कि पहले आपको क्या बताया मैंने आपको कि 10 SMA शुड टेक अ सपोर्ट ऑन 50 SMA, फिर आप डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम्स देखोगे, एक्स्ट्रा NSE की वेबसाइट पे जाके आप वॉल्यूम्स देखोगे, आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, जब ये चारों चीजें मिल जाएगी तब आप लोगे, है ना। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आई हैव नो आइडिया, आई थिंक आज इतना ही करते हैं। See, Arun is saying Yogesh sir's setup is too good, making profits regularly by using his setup in intraday. Right. My portfolio stock विल बी फाइन। देखो अभी मार्केट गिरा था ना, मार्केट चलेगा भी ना तो उसमें ठीक हो जाएगा, जिसका पोर्टफोलियो नीचे गया उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, योगेश सर's मॉड्यूल इज फैंटास्टिक, ग्रेट, यू गेट ऑल गुड टीचर्स ओनली। इमोशनल कंट्रोल के लिए सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए। योगेश सर मॉड्यूल इज फैंटास्टिक, ग्रेट।
ऑल राइट गाइस, टेक केयर। आज इतना ही। कोई और 10 मिनट है अभी, कुछ और करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन हो तो। बट ऑप्शंस के बारे में कल आई कीप अ क्लास ऑन संडे, उस दिन बात करेंगे। उस दिन ऑप्शंस और मेरे स्कैनर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Otherwise, that's from my side. All the best and enjoy your weekend. Spend time with your family. Enjoy and rest and do some work on stock market. Bye bye. All mentors are good. Great, Vikas. When we say increase in price, increase in means OI, not OI in puts or calls. It's in the futures. Futures. I'll have a good breakfast. I don't know. I'm not supposed to have good breakfast. I'll just have some sprouts and all, and a cup of tea. That's it. So that's it. Bye bye. See you.